Hello everyone, this is Sampada Gurjar. I am currently posted as Sub-Divisional Magistrate in Singrauli district of Madhya Pradesh. I had got rank 1 in MPPSC 2017. आज हम बात करने वाले हैं about my journey from an aspirant to an officer. Talking about my family background, ours was a normal middle class family. My father was posted in the prosecution department. He retired as the deputy director of prosecution. मेरी मम्मा हमारी 12th होते तक एक होम मेकर रही हैं. She joined her job only after we started our college. I have my elder brother, he's just 1.5 years older to me. He's currently working in a private firm abroad. I had my grandmother who passed away this year only. She has had a lot of influence on my life and मेरा ये मानना है कि मेरी लाइफ जो भी है उनके आशीर्वाद से है. Talking about schooling, from class 1 to class 12th, I studied in St. Joseph's Convent Girls Senior Secondary School in Jabalpur. School के दौरान I used to be a very active kid. I was good in academics. I used to take part in every extracurricular activity that used to come my way. Singing हो, dancing हो, poetry recitation हो, debates, speeches, inter-school competitions, band में रहना, school band में, school orchestra में, आपका स्टेज ड्रामास प्लेज व्हाटसोएवर जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती थी स्कूल में आई ट्राई टू टेक पार्ट इन दोज एंड आई यूज टू ट्राई टू पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड. आई थिंक वो जो एक बैकग्राउंड था that excitement to take part in different things and to experience diverse things, I think that is what brought me and I think that is what gravitated me towards the civil services. Because the nature of the job here again is very diverse. आपका कोई भी एक दिन आपके बाकी दिन जैसा नहीं जाता है. There is no monotony. There is always something new coming up. ये जो नए नए एक्सपीरियंस नए नए एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्ट लेना, I think somehow that sowed the seed for my career into the services. 10th बोर्ड्स के बाद 11th क्लास में मैंने मैथ साइंस लिया था और जैसा कि उस समय उस एज का हर मैथ साइंस लेने वाला बच्चा करता है, I started preparing for IIT exams. 2-3 महीने बाद ही मुझे समझ में आने लगा शायद IIT इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. एंड बाय द टाइम 11th क्लास ख़त्म हुई थी, आई वॉज क्वाइट क्लियर कि दिस इज़ नॉट द फील्ड आई वॉन्ट टू परस्यू फर्दर. एंड बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि आई वॉन्ट टू गेट इन टू सिविल सर्विसेज एंड दैट इज़ माई अल्टीमेट करियर चॉइस. सो आई ट्राई टू कन्विंस माई फैमिली कि वाई नॉट आई डू अ BA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और wherever. Simultaneously, I prepare for the civil services and that is how I will go about my future. But there were different views and my mother took me to our coaching teacher, our IIT coaching teacher, and he counseled us in such a way and he tried to convince my mother that she is just trying to run away from the hard work. And on a scale of 1 to 10, अगर IIT 2 है तो UPSC 8 है. आपकी बच्ची अगर IIT से ही भाग रही है तो वो UPSC तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाएगी. सो दिस वॉज द थिंग्स दैट वर टोल्ड. और फिर माई मम्मा ऑल्सो सेड कि ठीक है, इट्स जस्ट गोइंग टू टेक 1 more year ऑफ योर लाइफ. आप BA करोगे तो आपको 3 साल लगेंगे, आप इंजीनियरिंग करोगे तो आपको 4 साल लगेंगे. 1 साल एक्स्ट्रा देने के कारण एटलीस्ट यू विल ऑलवेज हैव अ करियर बैकअप फॉर यू. सो आई अंडरस्टूड वॉट माई मदर टोल्ड मी, वॉट माई मदर मेड मी अंडरस्टैंड. एंड सो 12th क्लास में आई ग्रू सीरियस एंड आई स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मैथ्स एंड साइंस की स्टडीज़. सिविल सर्विसेज और इसकी चीज़ें मैंने सोचा कि फर्स्ट आई विल फिनिश अप विद द 12th, ओनली देन आई विल थिंक अबाउट इट. आई अपीयर्ड फॉर द 12th बोर्ड्स. आई गॉट good scores in the 12th boards. However, as luck would have it, I did not clear IIT. Neither did I wanted to clear IIT. So, but I did get into BITS Pilani, Goa campus. Now, this was one situation where I had to decide. I was only 17 years of age, सिर्फ 17 साल की थी मैं, and there was a big decision lying in front of me. On one hand was BITS Pilani, on the other hand was a government engineering college in Jabalpur, that was my hometown. तो इन दोनों के बीच में चॉइस था. My parents left it up to me. I thought and thought and thought and then again thought and I came to the decision that I want my career in the civil services and probably going into BITS Pilani, dedicating my 4 years over there. 4 साल के बाद मैं सिविल्स की तैयारी शुरू करूँगी, 5वें साल में अपीयर होंगी
उसके बाद भी मुझे नहीं पता क्या होगा, या फिर 4 साल इंजीनियरिंग इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ने के बाद maybe I decide on a different career path altogether. I change my course and I did not want to pursue a career in that direction. On the other hand was a government engineering college in Jabalpur that was in my hometown. मैंने सोचा that will give me the right environment, the peace of mind, my family support to pursue something as big as civil services. So I took the difficult choice. I took the road less traveled by. I followed my heart and I took admission in the Government Engineering College, Jabalpur. I think that is a major decision. उस समय लगता था कुछ गलत डिसीजन ले लिया है, मेरे फ्रेंड्स सब बड़े बड़े कॉलेजेस में बड़ी बड़े शहरों में पढ़ रहे हैं, and here I am stuck where I had always been till class 12th. तो उस समय लगता था ये गलत किया, लेकिन सिलेक्शन के बाद जब रेट्रोस्पेक्ट में मैंने वो चीज़ें एनालाइज की, तब मुझे समझ में आया वो डिसीजन कितना मैच्योर था. बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन आई गॉट अ हेड स्टार्ट. मैं जल्दी स्टार्ट कर पाई अपनी प्रेपरेशन, मुझे फैमिली का सपोर्ट मिला, मुझे प्रेपरेशन एक बर्डन नहीं लगी क्योंकि वो कॉलेज के साथ ही पूरी हो गई थी और कॉलेज से निकलने के जस्ट बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होते गए एग्जाम्स. सो इन रेट्रोस्पेक्ट दैट वाज अ वाइज डिसीजन. तो आपकी लाइफ में भी ऐसे मोमेंट्स आएंगे वेर यू हैव टू मेक क्रूशियल डिसीजंस, और उस समय जो भी आपकी एज हो, बट यू नीड टू हैव द लॉन्गर विजन इन योर माइंड. आपको आगे तक देख के चलना है रादर दैन टेम्पररी सेटिस्फैक्शन या टेम्पररी हैप्पीनेस को देखते हुए. द सीड फॉर एंटरिंग इनटू द सिविल सर्विसेज वाज सोन इनटू मी बाय माय फैमिली. मेरी मम्मा शी वाज ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय द सर्विसेज. मम्मी ने खुद भी 3 से 4 बार MPPSC का इंटरव्यू दे के रखा हुआ था, तो उनको एक आइडिया था ये सर्विसेज क्या होती हैं, क्या डिमांड करती हैं, किस तरह का इसका जॉब प्रोफाइल रहता है. सिमिलरली पापा ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसेज में थे. पापा के साथ जब भी हम किसी फंक्शंस में जाते थे, पार्टीज़ में जाते थे, तो हम लोग देखते थे पापा को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, लोग कितनी बात करते हैं, कितना पूछते हैं, किस तरह का स्टेचर रहता है सोसाइटी में. सो अगेन दैट वाज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट ड्रोव मी टूवर्ड्स जॉइनिंग द सर्विसेज. मम्मा मुझे बताती रहती थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें का डाउट होता था, मम्मा ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है. कोई भी चीज़ अगर अव्यवस्थित रहती थी, कुछ सिस्टम है, so mama used to explain it to me कि this is how you can make it right. there is a collector who sits at the head of the district. वो चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहें तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. अगर तुम कलेक्टर बनोगी तो तुम ऐसा कर लोगी. तो तब मुझे समझ में आया कि अगर आप एक कलेक्टर बन जाते हो तो आपके पास इतनी पावर्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की और इतनी गलत चीज़ों को सही करने की, इतनी चीज़ों को सुधारने की. बहुत छोटी छोटी चीज़ें, कहीं पे कचरा पड़ा है तो उसको 2-4 कॉल लगाओ एंड द पीपल विल कम एंड क्लियर इट ऑफ. कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, एंड दैट आई विटनेस टुडे ऑल्सो वेर एवर देर इज सम प्रॉब्लम इन माई सब डिविजन और एनी वेयर, एंड आई जस्ट हैव टू मेक अ फ्यू कॉल्स टू द राइट पर्सन्स एंड दे डू देयर जॉब. तो एज एन SDM और एज अ डेप्यूटी कलेक्टर, एज अ सिविल सर्वेंट, आपका काम है कि आपके नीचे जितने लोग हैं वो सही काम कर रहे हैं या नहीं, और आपको जैसे ही कंप्लेंट मिलती है आपका कोशिश रहना चाहिए कि आप उस काम को करवा पाओ. द सर्विस डिलीवरी इज द प्रायोरिटी. तो ये चीज़ उस समय एक 13-14 साल की बच्ची को मेरी मम्मा ने समझाई, एंड दैट इज़ हाउ आई वॉज अट्रैक्टेड टू द सर्विसेज. कि हाँ, एक बार कलेक्टर बन जाएंगे तो इतनी सारी चीज़ें हम सही कर सकते हैं, इतना सारा अच्छा काम कर सकते हैं. सो आई वॉज वेरी यंग, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट फुली, बट आई न्यू कि ये करने से आप लोगों की लाइफ पर असर कर सकते हो. तो वहाँ से मैंने डिसाइड कर लिया था, हाँ दिस इज़ प्रॉबली द लाइन ऑफ करियर आई वॉन्ट टू परस्यू. और जब मैंने मम्मी को ये बताया तो मम्मा फुली सपोर्टेड मी. उन्होंने कभी मुझ पर ये चीज़ इम्पोज नहीं की, उन्होंने बस मुझे चीज़ें सजेस्ट करी कि तुम ऐसा कर सकती हो. और क्योंकि मुझे अच्छी लगी और मैंने अपना रुझान बताया, देन मम्मा सपोर्टेड मी फुली. She has been the ultimate supporter in every step of my life, and so has been my father. So I took admission in Government Engineering College Jabalpur. Electronics और Communication branch में मैंने admission लिया था 2012 में. College के first year में, because I was attracted by various extracurricular activities, और स्कूल में भी क्लास 8th और 9th में मैंने NCC ज्वाइन किया हुआ था, A सर्टिफिकेट लिया था,
और उस दौरान भी मैंने कुछ ऐसे कैंप्स करके रखे थे. नेशनल इंटीग्रेशन कैंप बिहार के बरौनी में ऑर्गेनाइज हुआ था. आई वॉज ओनली 13 years of age और वहाँ का एक्सपोजर आई गॉट टू हैव बिकॉज ऑफ NCC. तो NCC का पार्ट रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था. तो जब मुझे कॉलेज में पता चला यहाँ पे भी ऑप्शन है, आई कैन ज्वाइन द नेशनल कैडेट कोर, आई वॉलंटियर्ड फॉर दैट. आई ज्वाइन द नेशनल कैडेट कोर and one of the very coveted things for an NCC cadet, that is the Republic Day parade. So I was part of the Republic Day camp in 2013. Right from October till January there are continuous camps and it is such a nice exposure. अगर कुछ एस्पिरेंट्स या कुछ स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं जो अभी अपने स्कूल या कॉलेज में है, मिड कॉलेज में है, I would really suggest and I would really encourage you people to join the National Cadet Corps. It's an experience of a lifetime. जो अनुभव और जो फीलिंग आपको NCC देती है वो आपको आगे आने वाली लाइफ में बहुत मदद करती है. So I was part of the Republic Day camp in Delhi in 2013. After that उसके आगे एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है जहाँ पर इसी रिपब्लिक डे कैंप से ही बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है. So I was part of a contingent of 12 cadets from all over India who were sent to Sri Lanka as the cadet ambassadors. So again that was a very huge exposure for a student who's just 18 years of age. So I got to experience that. We met the president of Sri Lanka, we met the prime minister of Sri Lanka as delegates, we met their different chief of army and navy staffs. So that kind of exposure and that kind of feeling for doing something for your country, for the pride that you have in being someone to your country, वो जो मुझे अनुभव मिला था, that did instill some more love for the country and some more patriotism. And had I not been into the services, I think I would have probably joined the army. तो NCC का जो exposure था जो मुझे अपने स्कूल टाइम पे और अपने कॉलेज टाइम पे मिला था, I think that was also a big push forward for my journey into the civil services. Even today, the discipline that it has instilled in me, the confidence it has instilled in me, the thing that the sense of identity it has instilled in me still helps me. It helped me as an aspirant and it still helps me as an officer. So I finished my first and second year of college that went completely to NCC and the camps. Then in the third year, when there was time at hand, I started with my UPSC journey. मेरे कॉलेज के थर्ड ईयर से मेरी UPSC प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट हुई थी. The first thing that I did when I started my civil services preparation was I took a printout of the UPSC syllabus. सबसे पहले मैंने प्रिंट आउट लिया. उसके बाद I took out the previous year's papers. Previous year's papers ऐसा लग रहा था हिब्रू भाषा में लिखे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. I was such an amateur, I did not even know कि पॉलिटी और पॉलिटिक्स दो अलग अलग चीज़ें होती हैं. बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं लेकिन आपको स्टार्ट भी बेसिक से करना होता है. सबसे पहली बुक जो मैंने सिविल प्रिपरेशन के दौरान खरीदी थी और पढ़ी थी, दैट वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, 11th क्लास की NCERT. मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ आपको शुरुआत एकदम बेसिक से करनी है और बेसिक होती है वो चीज़ जो एक स्कूल का बच्चा भी पढ़ के समझ सके. तो आप वो किसी भी बड़ी बड़ी बुक्स पे जाने से पहले ऑलवेज स्टार्ट विद द बेसिक NCERT बुक्स. क्लास 6 का बच्चा अगर वो समझ सकता है तो आप भी उसको डेफिनेटली समझ सकते हो, और वो ही किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें आप ज़ीरो हो उसमें आपको एक बेस देने का काम करता है. तो मैंने 11th क्लास की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ी थी. उसके बाद मैंने लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी. उसके बाद आई ग्रेजुअली स्टार्टेड डूइंग इट सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट. एक एक सब्जेक्ट को उठा कर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया. माई डेली शेड्यूल तैयारी के दौरान ऐसा रहता था, फ्रॉम अप्रॉक्स 10 o'clock in the morning to 5 o'clock in the evening कॉलेज रहता था डेली. I used to leave by around 9 o'clock in the morning and return by 5:30 or so. But towards the end years, 3rd, 4th year में there was some relaxed time that I got in college. जिस दिन कॉलेज रहता था I used to return home by 5:30 or so and I used to study for 3 hours. जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना है उसको I used to study. After that, I used to take a dinner break and then from 9 o'clock or 10 o'clock मैं जो भी मैंने 5:30 से 8:30 के बीच में पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करती थी. I used to revise that in half an hour. आधा घंटा बस आप दो, जो भी आपने पढ़ा है उसको रात में रिवाइज करने में अगर आप आधा घंटा दे देते हो,
उसमें हाईलाइट कर दो चीज़ें, अंडरलाइन कर दो, जो भी करना है, दैट थिंग स्टेज इन योर माइंड. देन अगेन नेक्स्ट डे जब आप पढ़ रहे हो तो आप पिछले दिन का भी रिवाइज कर लो, उस दिन का भी रिवाइज कर लो. सो ये डेली रिविजन से, आई थिंक डेली रिविजन इज द की फॉर मेकिंग थिंग्स स्टे इन योर हेड. बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं कि हम पढ़ते तो हैं, हमें याद नहीं रहता, हमें याद नहीं रहता. तो आप ये चीज़ याद करो, आपने बहुत पहले कोई स्टोरी बुक पढ़ी होगी, आपको आज की डेट में उसकी स्टोरी नहीं याद होगी, बिकॉज यू जस्ट गिव इट वन रीडिंग, यू डिड नॉट रिवाइज इट टू रिमेंबर. सो सिमिलरली आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं दे आर वेरी सिंपल, लेकिन ज़रूरत है कि आप उनको बार बार रिवाइज करो, तब ही वो आपके मेमोरी में स्टे करती हैं. सो आई थिंक दिस वॉज वन फैक्टर दैट हेल्प मी टू रिटेन थिंग्स एंड दैट गेव मी अ कॉन्फिडेंस कि आई नो अबाउट थिंग्स. सो 11 बजे तक आई यूज टू डू ऑल ऑफ दिस. जिस दिन कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं रहती थी, देयर वॉज सम रिलैक्स टाइम आई गॉट इन माई 3rd and 4th ईयर. तो उस समय उन दिनों में आई यूज टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द मॉर्निंग इटसेल्फ. सुबह 2 घंटे न्यूज़पेपर रीडिंग होती थी. द हिंदू को मैं रीड करती थी रिलीजियसली एवरी डे. उसमें द हिंदू को भी रीड करने के दौरान मैंने कई बार उसको पढ़ने की स्ट्रैटेजी चेंज की. पहले मैं उसके आर्टिकल्स को काट कर एक फोल्डर में रखती थी, सब्जेक्ट्स वाइज उसको सेग्रीगेट करती थी. फिर मैंने उसके नोट्स बनाने शुरू किए. फिर उसके बाद मैंने उसके जो ऑनलाइन नोट्स मिल जाते हैं कुछ वेबसाइट्स पे, वो फॉलो करना शुरू किया. तो इन सभी स्ट्रैटेजीज़ में से मुझे जो सबसे इफ़ेक्टिव लगी है वो है कि आप डेली न्यूज़पेपर का पहले खुद आपको जो समझ में आ रहा है उससे आप खुद उसके नोट्स बना लो अपनी एक सेपरेट डायरी या सेपरेट रजिस्टर में, और जो आपके मंथली मैगजीन्स आते हैं उससे बस उसको सप्लीमेंट करो. ऑलराइट, सो दिस इज़ द आई थिंक द बेस्ट वे टू रीड द हिंदू. बाकी जितने यूट्यूब पे एनालिसिस चलते हैं या फिर बाकी सारी चीज़ें आती हैं वो सारी सप्लीमेंट्री है. अगर आप ये चीज़ कर लोगे, मंथली मैगजीन से सप्लीमेंट कर रहे हो और डेली उसको पढ़ रहे हो, आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट केस फॉर करेंट अफेयर्स. ये मेरा मानना है. सो मैं ऐसे सुबह 2 घंटे का न्यूज़पेपर रीडिंग तो रहता ही था. उसके बाद आई यूज टू डिवाइड माई डे इनटू सेगमेंट्स ऑफ 2 hours ईच. और मैं किसी भी सब्जेक्ट को मैं अपनी तैयारी को सब्जेक्ट्स में डिवाइड करती थी कि आई एम डूइंग पॉलिटी फॉर द होल डे, आई एम डूइंग पॉलिटी फॉर द होल वीक, कि इतना सिलेबस है मेरा पॉलिटी का, इतने चैप्टर्स हैं, आई नीड टू फिनिश दिस ऑफ इन 7 days 5 days व्हाट्सोएवर. सिमिलरली आई यूज टू टेक इट अप वीक बाय वीक, एक सब्जेक्ट एक वीक, फिर एक सब्जेक्ट एक वीक, इस तरह से मैं प्रिपेयर करती थी. अगर आपसे वैसा नहीं बनता, यू कैन टेक 2 subjects इन अ डे, बट आई वुड सजेस्ट 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट एक दिन में मत करो. तो आपका न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया, आपका एक सब्जेक्ट हो गया और आपका करंट अफेयर्स हो गया. करंट अफेयर्स के लिए मैं विजन IAS की मंथली मैगजीन को रेफ़र करती थी. सो दिस वॉज माई डेली शेड्यूल. लाइक सुबह 2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ा, ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक लिया, थोड़ा घूम के आ गए 15-20 मिनट, फिर आके दोबारा टेबल पर बैठे, 2 घंटे का कुछ और सब्जेक्ट पढ़ा, मे बी करंट अफेयर्स पढ़े, मे बी पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ी या NCERT पढ़ी. देन अगेन आई टुक अ ब्रेक फॉर हाफ एन आवर और सो. देन अगेन 2 घंटे कुछ और पढ़ा या मॉक टेस्ट के लिए अपेयर हुए. आई अपियर्ड फॉर सेवरल मॉक टेस्ट फॉर प्रीलिम्स एंड सम मॉक टेस्ट फॉर मेंस एज वेल. तो ये हो गया आपका, दिस इज़ हाउ आई यूज टू डिवाइड माई डे. ये मेरा शेड्यूल था कॉलेज के 3rd और 4th ईयर में. एज सून एज आई ग्रेजुएटेड इन 2016, I had always been preparing for UPSC. UPSC का प्रीलिम्स था उस समय अगस्त 2016 में, एंड उसी समय MPPSC का नोटिफिकेशन आया था. तो MPPSC की मेरी एज सच कोई तैयारी नहीं थी. जस्ट बिकॉज नोटिफिकेशन आया था, आई थॉट वाई नॉट गिव इट अ ट्राई. इससे नुकसान क्या हो सकता है, आपने अभी तक जो पढ़ के रखा है उसका एक टेस्ट ही तो होगा, और प्रीलिम्स का अटेम्प्ट MPPSC में काउंट नहीं करता है. तो दैट इज़ वाई देयर वॉज नथिंग टू लूज. So I filled the form for prelims and I appeared for MPPSC prelims. क्योंकि मेरी MPPSC की बहुत डेडिकेटेड तैयारी नहीं थी, लगभग एग्ज़ाम के 1 महीने पहले my mother brushed me up on several things. मतलब इवन MP का मैप कैसा है, MP से कितनी नदियाँ बहती हैं, कितने पहाड़ हैं, कौन कौन से जोग्राफिकल रीजन्स हैं, ये सारी चीज़ें मेरी मदर ने मुझे पढ़ाई. और उसके बाद मैंने खुद भी कुछ चीज़ें जितना भी हो सकता था, बेसिक चीज़ें मैंने MP के बारे में पढ़ी, एंड आई अपियर्ड फॉर द प्रीलिम्स. सो आई क्लियर्ड MPPSC प्रीलिम्स एंड द मेंस वर शेड्यूल्ड इन अक्टूबर 2016. इसी बीच में मैंने अगस्त 2016 में UPSC का प्रीलिम्स में भी अपियर हो गई थी.
एंड उस समय 2016 में आई वॉज गेटिंग 110, 112 मार्क्स इन प्रीलिम्स. रिजल्ट आने के बाद आई गॉट 112 और उस साल का जो कट ऑफ गया था प्रीलिम्स का दैट वाज 116. जब मेरा प्रीलिम्स के एस्टिमेटेड मार्क्स मैंने कैलकुलेट किए थे, आई टॉक्ड टू मैनी पीपल और सबका कहना था कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा. तो इमीडिएटली विदाउट एनी प्लानिंग आई वेंट टू दिल्ली, क्योंकि मेरे ऑप्शनल की तैयारी नहीं थी, मेरी सिर्फ जीएस की तैयारी थी. दिल्ली जाकर मैंने 5 महीने का हिस्ट्री ऑप्शनल की कोचिंग ज्वाइन करी और इसी बीच में अगस्त से 30-40 दिन बाद यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम कट ऑफ उसमें 116 गया था, जो बहुत हाई था कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स. सो आई वॉज सैड बट आई वॉज नॉट डीमोटिवेटेड. मुझे लगा कि जब मैं फ्रेशर होके, इट वॉज जस्ट माई फर्स्ट अटैम्प्ट, इट वॉज नॉट अ वेरी प्रोफेशनल तैयारी जो मैंने करके रखी थी. डिस्पाइट दैट आई वॉज सो क्लोज टू द कट ऑफ, आई विल श्योरली मेक इट समडे. तो इसी बीच में अक्टूबर 2016 में MPPSC 2016 का मेंस के लिए मैं अपीयर हुई. मैंने खुद के नोट्स अब मेंस के लिए बना लिए थे, MP ओरिएंटेड, काफ़ी चीज़ें मध्य प्रदेश की जिनके बारे में मैं नहीं जानती थी. आई मेड माई ओन नोट्स. MPPSC में एक प्रॉब्लम थी, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मटेरियल नहीं उपलब्ध था. तब नहीं, आज भी नहीं है और तब तो बिल्कुल भी नहीं था. तो मैंने हिंदी मीडियम की बुक्स ली. मीडियम मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं थी, इवन दो मेरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हुई है, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट हिंदी एज वेल. तो मैं हिंदी की चीज़ें लेती थी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आई मेड माई ओन नोट्स फॉर मेंस MP. अक्टूबर 2016 में आई अपीयर्ड फॉर द मेंस. जनवरी 2017 तक आई फिनिश्ड माई कोचिंग फॉर माई ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड आई केम बैक टू माई होम टाउन, दैट इज जबलपुर. After returning back to Jabalpur, I started teaching for CLAT as well as for civil services. I started teaching in 2 offline coachings, and that is where my journey as a teacher, as an educator also began. और तब मुझे ये भी लगा कि I really enjoy teaching as well. तो अगर एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता है तो फिर I think even being a teacher is not a bad option. It was something that I really enjoyed. So, जैसे मैंने पहले कहा, had I not been into the services before I started teaching, I would have joined the army. But another career option would have been a teacher. So I really enjoyed teaching, that I discovered then, and I still do. After getting back to my hometown from Delhi, जनवरी में मैं लौटी थी. I think towards the end of January या February 2017 में MPPSC 2017 का prelims था. So I again appeared for that, and by God's grace I cleared MPPSC prelims 2017 as well. Fast forward 2-3 months, on 30th May 2017, my interview for 2016 MPPSC was scheduled. From 3rd June 2017 to 9th June 2017, MPPSC Mains 2017 was scheduled, and on 18th June 2017, UPSC Prelims 2017 was scheduled. तो I was in a fix. इंटरव्यू पे फोकस करूँ कि MPPSC मेंस पे फोकस करूँ कि UPSC प्रीलिम्स पे फोकस करूँ. I discussed this with my mother, and my mother was very clear. She said, "You leave MPPSC alone. You only focus on UPSC." मम्मी ने कहा तुम्हें मेंस देने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है MPPSC का. I said, "मम्मा, क्लियर हो गया है एग्ज़ाम, so why not appear for it?" So my mama said, "Okay, you appear if you want to appear, but you shouldn't study for it." So what I did was I studied only about 1 week to 10 days before MPPSC Mains 2017, the one in which I have got the first rank. And 30th May को मैंने इंटरव्यू दिया था 2016 का. उस समय बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने अपने इंटरव्यू की डेट्स कमीशन को एप्लीकेशन देके आगे भी बढ़वाई थी, because they couldn't get time to prepare for the mains. But I thought कि if this date is there, I should appear on that date only. इसको आगे बढ़वाने की कोई लॉजिक नहीं है. तो 30 मई को मैं इंटरव्यू दिया, 31 मई को मैं वापस आई. 1st जून को there was some fair going on in Jabalpur. There was a nice Ferris wheel and all the झूलास. So I went with my friends to that fair. मैं वहाँ गई and that was a nice day I spent. I did not study for that particular day. And 3rd जून से 9th जून तक I gave the mains with a free mind. इस mindset के साथ कि होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी कुछ लूज करने के लिए नहीं है.
With that free mind and positivity, I appeared for the mains. And I think that was the reason I got such a good result. जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करते हो जिसको लेकर, या जिसको बहुत ज़्यादा ओवर हाइप नहीं करते हो, बहुत ही कैजुअल, कूल और पॉजिटिव माइंड से जिस चीज़ में अपेयर होते हो, विद द एटीट्यूड दैट यू हैव नथिंग टू लूज इवन इफ यू फेल, उस चीज़ में आपके रिजल्ट्स बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आते हैं. ऑन द अदर हैंड, I appeared for UPSC prelims 2017. I got 103.5 marks in that prelims, and that year the cutoff was 105 point some marks. So I again missed by 1.5 or 2 marks. But of course it's 0 or 1, या तो आप select हुए हो या आप नहीं हुए हो. But उस टाइम पे मुझे सच में बुरा लगा था, क्योंकि that was one serious attempt that I had given. So I was still teaching at the coachings in Jabalpur. 12 जुलाई 2017 को MPPSC 2016 का रिजल्ट आया था. शाम को आया था रिजल्ट. आई वॉज स्टिल टीचिंग इन माई क्लास when somebody from the coaching told me, are you this Sampada Saraf? I said yes. He said, congratulations, you have been selected as DSP. So I was happy, but I was not content. I was happy कि ठीक है, I've got a post, but I did not want to join the police services. I always had an inclination towards the administrative services. तो दैट कैरीड ऑन. उसके बाद फिर नवंबर 2017 में, 7 नवंबर 2017 को मेरा 2017 का इंटरव्यू आया था. सो आई अपियर्ड फॉर द इंटरव्यू इन नवंबर 2017 एंड द इंटरव्यूज वेंट वेल. ऑन 23 दिसंबर 2017 MPPSC 2017 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे. अगेन द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड समवेयर अराउंड 6:30 इन द इवनिंग. इट सो हैपेंड दैट आई वॉज नॉट वेल दैट डे. आई वॉज डाउन विथ फीवर, सर्दी ज़ुकाम हो रखा था. मैं जहाँ कोचिंग में पढ़ाती थी वहाँ से भी मैंने लीव ली थी उस दिन की कि आई वोंट बी एबल टू टीच, और मैं घर में सो रही थी उस टाइम. सडनली माई मदर वोक मी अप एंड मम्मा वॉज लिटरली इन टीयर्स. शी वॉज क्राइंग, शी वॉज ऑन द फोन. समबडी हैड कॉल्ड हर अप एंड सेड, congratulations, she has been selected. And mama said, she has been selected? So he said, not just selected, she got the rank 1. And mama was crying and laughing and she was waking me up. और मैं उठी और मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है मेरे आजू बाजू. मेरा फ़ोन साइलेंट पर रखा था. आई चेक द फ़ोन, देयर वर सेवरल मिस्ड कॉल्स. आई रिप्लाइड टू दोज मिस्ड कॉल्स, उनको कॉल बैक किया. एवरीबडी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, जो मुझे जानते थे. फिर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि लोग सही चीज़ बता रहे हैं. मुझे लगा ऐसा तो नहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो. तो उस केओस के बीच में मैंने खुद भी वेबसाइट खोली, खुद ही PDF डाउनलोड किया कि PDF में तो कुछ गड़बड़ी नहीं है जो इधर उधर से आ रहे हैं. खुद PDF डाउनलोड किया एंड देन आई सॉ माई नेम. एंड देन स्लोली द रियलाइजेशन केम टू मी कि व्हाट इज़ हैपनिंग. फिर घर पे न्यूज़ रिपोर्टर्स केम, इंटरव्यूज़ लिए. Lot of coaching, the coaching in which I used to teach, they also came. Everybody congratulated me. So that is how the whole thing started, and it continued for a couple of days. Then after a few days, we got the letter that your training is going to commence in RCVP Narona Academy of Administration in Bhopal. However, even after both the selections, एक और catch था. मेरे पापा was always attracted by the police services. तो 2016 में DSP का सिलेक्शन हुआ था, 2017 में डेप्यूटी कलेक्टर का. एंड इवन आफ्टर गेटिंग रैंक 1, पापा यूज्ड टू आस्क मी, बेटा DSP ज्वाइन नहीं करोगी तुम? एंड आई यूज्ड टू से, नहीं पापा, मुझे डेप्यूटी कलेक्टर में ही जाना है. बिकॉज ही हैड एक्सपोजर ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, उनको लगता था दैट आई शुड डोन अ पुलिस यूनिफॉर्म. बिकॉज ऑफ हिज एक्सपोजर टू द पुलिस डिपार्टमेंट, ही ऑल्सो वॉन्टेड मी टू डोन अ पुलिस यूनिफॉर्म. सो अमिड्स ऑल दिस इंटरेस्टिंग थिंग वॉज ऑल्सो देयर. सो मुझे ऐसा लगता है the reason behind my success, behind the rank 1, behind these 2 selections, is that I took it in a very light way. I took it in a very positive way. मैंने इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं किया, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लिया, बहुत ज़्यादा हवा नहीं बनाया इसका कि ओ माय गॉड हो गया तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा, ये तो बर्बाद हो जाएगी, नहीं हुआ तो मैं इतने लोगों को डिसअपॉइंट कर दूँगी. So I took it in a very light way कि if it's done, it's done. If it's not done, I am not useless enough कि I cannot make good use out of my life. I can do anything I want to do. It's not just one exam or one services that decides who I am. आपका potential, आपका caliber, आपकी intelligence is not decided by one examination. So do not let your self-esteem get hampered.
टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, एन्जॉय द जर्नी। आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हो इस जर्नी के दौरान और आप उसको एन्जॉय करो। अगर आपने एक ऑनेस्ट वे में हार्डवर्क किया है, एक ऑनेस्ट अप्रोच के साथ चीज़ें की हैं और सच में आप डेडिकेटेड रहे हो, नॉट जस्ट फॉर शो ऑफ, तो फिर बिलीव मी, इफ नॉट दिस एग्जाम, life will have something good planned for you. Destiny will have what is best for you and it will come to you at the right time. तो किसी भी एक एग्जाम को अपनी लाइफ मत बनाओ. It does not decide how capable you are. Even if you do not clear these exams, there are multiple examples who have given, ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2-3 साल दिए इस एग्जाम को, then if they could not clear, they left it and they are doing wonderful in their respective careers, जहाँ भी हैं. तो इसमें एक जुनून की तरह भी मत लो कि आप 8-8 साल इसी चीज़ को कर रहे हो. मेरा एक प्रैक्टिकल एडवाइस रहता है स्टूडेंट्स को, इफ़ यू आर टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर यूजुअल करियर, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे MBA का हो, जो भी हो, आप एक सेट लिमिट तय करो कि मैं 2 साल दूंगा इसको, या 3 साल दूंगा, या 1 साल दूंगा, जो भी है. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर इन दैट टाइम फ्रेम, you have to move on. You should move on. There has to be a plan B. You cannot waste the prime of your years in chasing something that may or may not come to you. I'm not saying be negative. It is something totally different. It's about being practical. And sometimes there is something called destiny. There is something called luck. कभी कभी ऐसा होता है, you give 100% of your efforts, you give 100% of your hard work, 100% of your intelligence. आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, सब कुछ किया है आपने, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए उस दिन पे, या कुछ आपकी तबीयत खराब हो गई, एक छोटा सा सिरदर्द ही क्यों ना हो गया, और आप यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म योर बेस्ट ऑन द एग्जाम डे. तो दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ. सो आई थिंक एवरीबडी whosoever is watching this video, it's just my personal suggestion. Your views or others' views might differ. That always take your preparation in a positive way. Do not make a very big issue out of it. And if you keep working towards it, if you keep working towards whatever you dream of, you will achieve it if you are positive and you are honest towards it. All the best to everyone. And people who do wish to become civil servants, if you're watching this video, my best wishes are with you that some years down the line, I see you on this very channel as officers on duty.